Hello friends, I'm Mukesh Dhanuka. Welcome back to our YouTube channel Institute of Mathematics and Physics. So this is the today 4 lectures on trigonometry. So far we have discussed in the previous 3 lectures that in the first lecture we have seen that what are the trigonometric functions and where that trigonometric function is taking the positive and negative value. In the second lecture we have seen the distribution of angle, means which angle is lying in the which quadrant. And we have seen where the trigonometric function is taking the positive value and which angle takes the positive value and at which angle we are taking the negative value. And in the previous class we have seen the trigonometric function at sum and difference of angle. Or I can say that we have seen sin a plus b, sin a minus b, cos a plus b and cos a minus b and some related number. Now in continuity to that topic we will see today in the class that what is that tan a plus b, tan a minus b, cot a plus b, cot a minus b and some related number. So we will start the topic. Just before starting the number of the this topic, just I would like to do some number regarding the previous topic. Suppose the question is that how can I find the value of cos 75 degree? As I say in the previous class that what is the formula for cos a plus b? Cos a plus b is nothing but cos a cos b minus sin a sin b, and that cos a minus b का फॉर्मूला ये हो जाएगा प्लस, करेक्ट. नाउ द cos 75 का मुझे निकालना है तो आई जस्ट राइट 75 को मैं लिख सकता हूँ 45 प्लस 30, करेक्ट. नाउ मैं अप्लाई करूंगा cos a प्लस b का फॉर्मूला तो ये होगा cos 45 इंटू cos 30 माइनस sin 45 इंटू sin 30 डिग्री. नाउ यहाँ से मैं इसको यहाँ लिख के लाया. cos 45 is nothing but 1 by root 2, cos 30 is nothing but root 3 by 2, minus sin 45 is 1 by root 2 and sin 30 is nothing but 1 by 2. So again 2 root 2 LCM गया, ऊपर बचा root 3 minus 1. So I can say that the cos 75 degree is nothing but root 3 minus 1 by 2 root 2. Suppose the cosine is that you know that cos 90 sin 90 का मुझे वैल्यू पता है. अगर मुझे नंबर निकालना सपोज साइन 180 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, जस्ट आई विल डू दैट. साइन आई कैन राइट 90 प्लस 90, यू नो दैट दिस इज नथिंग बट साइन 90 कॉस 90, क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. नाउ साइन 90 इज 1, कॉस 90 इज 0, cos 90 is 0, sin 90 is 1. So 1 into 0, 0, 0 into 1, 0. So and then answer is 0. So I can say that the sin pi is nothing but 0. Similarly, I can find cos pi, cos 180 degree, I will get it minus 1. Just you can check it by taking cos 90 plus 90 and you will get cos pi is equal to minus 1. Now, suppose that the question is that find the value of साइन 210 डिग्री. तो उसको हम कैसे करेंगे, साइन 180 प्लस 30 लिख सकता हूं मैं उसको. नाउ द फॉर्मूला इज साइन 180 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 180 इंटू साइन 30, करेक्ट. नाउ द साइन 180 इज साइन पाई, साइन 180 इज नथिंग बट साइन पाई इज 0 इंटू साइन कॉस 30 इज 1 रूट 3 बाय 2 प्लस cos 180 is nothing but minus 1, cos 180 is minus 1, so sin 30 is 1 by 2. So I get 0 and this is nothing but minus 1 by 2. So मुझे मिला sin 210 degree का value minus 1 by 2. In this way I can calculate many values by just using the formula of sin a plus b and cos a plus b. Now the thing is that how can I use the tan a plus b formula? तो tan a plus b का formula निकालते हैं. जैसे मैंने तुमको प्रॉमिस किया था कि मैं हर एक फॉर्मूला साइन ए प्लस बी एंड कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं. तो एग्जैक्टली टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, टेन ए प्लस बी के लिए मुझे चाहिए साइन ए प्लस बी बाय कॉस ए प्लस बी, बिकॉज यू नो दैट टेन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा बाय कॉस थीटा. साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकता हूं. नाउ द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी इज नथिंग बट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बाय cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी. करेक्ट है क्योंकि cos a प्लस बी का फॉर्मूला हमें cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी होता है.
दिस इज साइन बी, आई एम सॉरी। तो नेक्स्ट, अब मेरा काम यह रहेगा कि मुझे tan a प्लस बी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan चाहिए, इन टर्म्स ऑफ tan चाहिए। मतलब क्या, tan a प्लस बी का फॉर्मूला जैसे कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन एंड कॉस में रहा था, तो मैं क्या काम करना चाहता हूं कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला मुझे इन टर्म्स ऑफ tan चाहिए। तो अब यहां पर तुम देख सकते हो, मैं ऊपर नीचे क्या डिवाइड करने से मुझे tan मिलेगा। अच्छा, इस जगह पे मुझे क्या डिवाइड करना पड़ेगा, अगर मुझे tan चाहिए तो cos b को हटाना पड़ेगा, तो मुझे cos से डिवाइड करना पड़ेगा, और cos b को हटाने के लिए मुझे cos से cos b को डिवाइड करना पड़ेगा। तो वन थिंग आई कैन डू दैट, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a इंटू cos b से मुझे डिवाइड करना है। तो सपोज दैट अगर a प्लस बी बाय सी प्लस डी है एंड मुझे ऊपर और नीचे e से डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा मेरा काम, a बाई ई बाय प्लस बी बाई ई सी बाई ई प्लस डी बाई ई होगा। तो अब मुझे ऊपर नीचे क्या डिवाइड करना है, cos a इंटू cos b डिवाइड करना है। ओके, तो अब क्या होगा, sin a cos b, अब क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, cos a cos b प्लस cos a cos sin b divided by cos a cos b. Now the next thing is that cos a cos b by cos a cos b रहेगा, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, यहाँ पर माइनस sin a sin b बाय cos a cos b। और मैंने cos a cos b ही क्यों डिवाइड करा, मैंने तुमको बता चुका है यहाँ पर ना। cos b कैंसिल, ये हो गया मेरा tan a प्लस tan b, क्योंकि यहाँ पर cos a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों कैंसिल होके हो गया 1, दिस इज नथिंग बट tan a, और ये हो गया tan b, तो ये हो गया tan a इंटू tan b। सो मेरा tan a प्लस b का फॉर्मूला बन गया मेरे लिए क्या, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो सिमिलरली तुमको ये भी पता चल जाएगा, tan a माइनस b का फॉर्मूला हो जाएगा प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, एज आई डिड इन द प्रीवियस नंबर्स। सो tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। करेक्ट। नाउ अब आगे चलते हैं, cot a प्लस b का फॉर्मूला निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज दैट cot a प्लस b? सो नाउ द थिंग इज दैट cot a प्लस b का वैल्यू निकालना है मुझे। cot क्या होता है, cot इज नथिंग बट cos थीटा बाय sin थीटा। तो अब मैं लिख दिया यहाँ पर cos a प्लस b बाय sin a प्लस b, करेक्ट है। अब बताइए cos a प्लस b का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे लिए cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b बाय sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या है मेरे लिए, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। करेक्ट। जैसे कि हमने प्रीवियसली tan a प्लस b के फॉर्मूला में मुझे इन टर्म्स ऑफ tan चाहिए था बोल के मैंने cos a इंटू cos b डिवाइड करा। नाउ मेरा मन रहेगा कि, और मेरा काम यहाँ रहेगा कि cot का फॉर्मूला, cot a प्लस b का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cot आए, तो मैं क्या, चलो डिवाइड करते हैं, देखेंगे। अब इस जगह पे cot आने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, आई जस्ट डिवाइड sin a और sin b, क्योंकि cos को क्या करने से sin a बनेगा, तो आई कैन जस्ट डिवाइड sin a sin b होने से cot a cot b हो जाएगा, और इधर ये हो जाएगा 1। तो अब मैं क्या करना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे sin a इंटू sin b डिवाइड करेंगे। तो sin a इंटू sin b डिवाइड करने से क्या होगा, देखो, तो cos a cos b बाय sin a sin b माइनस sin a इंटू sin b बाय sin a इंटू sin b बाय sin a cos b बाय sin a इंटू sin b प्लस cos a cos sin b डिवाइडेड बाय sin a इंटू sin b। करेक्ट। अब इस जगह पे क्या हो गया, ये बन गया cot a, ये बन गया cot b, तो मेरा हो गया फॉर्मूला cot a इंटू cot b माइनस 1, क्योंकि 1 हो जाएगा डिवाइड होने से, और यहाँ क्या कैंसिल होगा, sin a कैंसिल हो गया, ये cot b प्लस cot a। तो मेरा फॉर्मूला बन गया cot a प्लस b का फॉर्मूला बन गया cot a cot b माइनस 1 बाय cot b प्लस cot a। सिमिलरली cot a माइनस b का फॉर्मूला जैसे मैंने बताया, प्लस माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। तुम लोग के बहुजन का मन में ये भी थिंकिंग आता होगा, सर हम यहाँ पर sin a sin b क्यों डिवाइड करें, सब sin a cos b डिवाइड कर सकते थे।
कर सकते थे। अगर मैं सपोज साइन ए कॉस बी डिवाइड करूंगा तो ये कॉस बी कैंसिल होकर कॉट ए दे देगा। अब मैंने क्या डिवाइड करा है, साइन ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कैंसिल हो जाएगा और ये साइन बी बाय कॉस बी टेन बी आ जाएगा। तो ये चीज़ रहा। तुम्हारे मन में अगर कुछ भी डाउट होता है तो तुम वेरीफाई कर सकते हो। अगर जैसे मैंने तुमको बोला कि कॉस बी को कैंसिल करके सिंपली यहाँ पर मैं डिवाइड कर सकता था साइन ए कॉस बी कैंसिल होकर ये कॉट ए तो दे ही देता, बट इस जगह पे क्या होता, साइन ए कैंसिल हो जाता और साइन बी बाय कॉस बी तो हो जाता टेन बी। तो आई कैन नॉट गेट द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉट, सो मैंने यहाँ क्या करा, साइन ए साइन बी डिवाइड करा एंड वी गॉट द फॉर्मूला ऑफ कॉट ए प्लस बी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस वन बाय कॉट बी प्लस कॉट ए, माइनस का फॉर्मूला सिमिलरली। तो चलिए अब इसके कुछ नंबर्स करते हैं। सपोज मुझे निकालना है tan 15 डिग्री, जैसे कि हम लोग sin 15 cos 15 निकाल रखे हैं, वैसे ही सपोज मुझे अगर निकालना है tan 15 डिग्री, तो जस्ट मैं क्या करूँगा, जैसे कि प्रीवियसली करके tan 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ 50 डिग्री को। नाउ द क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दिस इज tan 45 माइनस tan 30 बाय 1 प्लस, अगर माइनस ऊपर है तो नीचे प्लस, तो tan 45 इंटू tan 30। नाउ tan 45 इज नथिंग बट 1 एंड tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाय 2 बाय 1 बाय रूट 3, दैट इज 1 बाय रूट 3 बाय 1 प्लस 1 बाय, अच्छा tan 45 इज 1 इंटू 1 बाय रूट 3, तो अब क्या होगा, एलसीएम जाएगा रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 प्लस 1। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ tan 15 एज रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 प्लस 1। सपोज इस टाइप के कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। कि प्रूव दैट tan 56 डिग्री इज इक्वल टू cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री बाय cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री। ये प्रूफ करना रहता है मुझे, कई एग्जाम पे आता है। तो अब ये चीज़ यहाँ दे सकते हो, व्हाट इज द कनेक्शंस बिटवीन 56 एंड 11 डिग्री। अब देखो 56 को अगर मैं 11 से माइनस करूँगा तो बन जाएगा 45 डिग्री, और आई कैन राइट 56 डिग्री इज इक्वल टू 45 प्लस 11। तो अब मैं LHS अगर स्टार्टिंग करना चाहूँ तो tan 56 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ tan 45 प्लस 11 डिग्री। नाउ आई कैन जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ tan A प्लस B। तो ये फिर से हो गया tan 45 प्लस tan 11 डिग्री बाय 1 माइनस tan 45 इंटू tan 11 डिग्री। करेक्ट है, तो tan 45 होता है 1, tan 45 1, tan 11 को मैं लिख सकता हूँ sin 11 बाय cos 11। मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे RHS में sin और cos के टर्म पे है, जस्ट तो डिवाइड करा tan 11 को मैं लिख सकता हूँ sin 11 बाय cos 11 बाय 1 माइनस tan 45 इज 1 इंटू, फिर से मैंने वही काम करा क्योंकि मुझे इन टर्म्स ऑफ cos एंड sin चाहिए, तो एलसीएम जाएगा cos 11, नीचे cos 11 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया cos 11 प्लस sin 11 बाय cos 11 माइनस sin 11। तो ये हो गया मेरा आंसर प्रूफ्ड। नेक्स्ट एक नंबर करते हैं हम लोग। अच्छा, लेकिन अगर इन जनरल मुझे कुछ पूछा गया तो ये चीज़ एग्जाम पे कभी कभी आ जाते हैं कि अभी नहीं तो बाद में कभी ना कभी यूज होगा हमारे सेकेंड ईयर में भी, cos x प्लस साइन एक्स बाय cos x माइनस साइन एक्स, यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज नथिंग बट tan पाई बाय 4 प्लस एक्स। मैं अब इसको RHS से करना चाहूँगा, मैं LHS से करने से तो आ जाएगा इजीली, बट आई वुड लाइक टू डू फ्रॉम द LHS साइड। RHS में tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करने से ये आएगा, ये जनरल फॉर्मूला है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, बिकॉज अगर पाई बाय 4 एक्स की जगह 11 पुट करेंगे तो वो आ जाएगा। तो क्या करेंगे इस जगह पर LHS से, जस्ट डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इन टर्म्स ऑफ 10, क्योंकि मुझे फिर से 10 की टर्म में चाहिए, तो मैं इस जगह पे 10 कैसे आएगा, जस्ट डिवाइड कर देंगे cos x से, तो ऊपर और नीचे cos x से डिवाइड करने से बचेगा 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x। और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है प्रूव दैट 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x इज नथिंग बट tan पाई बाय 4 प्लस x। अगेन RHS से तुम निकाल सकते हो, बट अब LHS से कैसे निकालेंगे, जस्ट 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री और पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, प्लस tan x बाय 1 माइनस, इसके साथ 1 इंटू है कि नहीं, 1 इंटू tan x,
एंड 1 की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया 10π/4 इंटू 10x। अब बच्चों तुम देख सकते हो ये फॉर्मूला में पूरा फिट हो चुका है, 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, और ये किसी और का फॉर्मूला नहीं है, 10a प्लस b का ही फॉर्मूला है। सो समटाइम्स ये चीज़ हम डायरेक्टली यूज करेंगे कहीं कहीं पर, cos x प्लस साइन एक्स बाय cos x माइनस साइन एक्स इज नथिंग बट 10π/4 प्लस x। अगर किसी के रिलेटेड अगर क्वेश्चन मैं तुमको दूं तो एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 1069 डिग्री प्लस 1066 डिग्री बाय 1 माइनस 1069 डिग्री इंटू 1066 डिग्री इज इक्वल टू -1, 66 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो ये फॉर्मूला में फिट हो चुका है, दिस इज नथिंग बट 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10 इंटू 10b। तो ये चीज़ वाला क्या हो जाएगा, ये हो गया फॉर्मूला में फिट, और लिख सकते हैं 10a प्लस b। तो 69 प्लस 66 इज नथिंग बट 10 135 डिग्री, एंड 10 135 डिग्री को हम निकाल सकते हैं 10 90 प्लस 45 करके by use of formula 10a plus 10b, and you will get at is at -1। 10 145 डिग्री होता है -1। सो दिस इज अबाउट द 10 नंबर। सपोज और एक क्वेश्चन में एग्जाम पे आते हैं, कभी कभी मैं देना चाहूंगा तुमको। सपोज क्वेश्चन दिया इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू π/2, तीनों का सम अगर π/2 है, देन प्रूव दैट और शो दैट 10a इंटू 10b प्लस 10b इंटू 10c इंटू प्लस 10c इंटू 10a इज इक्वल टू 1 मुझे प्रूव करना है। और एक क्वेश्चन है इसके साथ साथ, यू हैव टू प्रूव दैट cot a प्लस cot b प्लस cot c इज नथिंग बट cot a इंटू cot b प्लस cot c इंटू cot c। मुझे ये दोनों को प्रूव करना है। ओके, जस्ट मुझे पता है a प्लस b के बारे में फॉर्मूला। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस जगह से यहाँ से आई कैन राइट a प्लस b इज नथिंग बट π/2 माइनस c, करेक्ट। अब मुझे फर्स्ट वाले को फॉर्मूला को अप्लाई कर प्रूफ करने के लिए बोथ साइड पे 10 अप्लाई करना पड़ेगा। अगर सेकंड फॉर्मूला को प्रूफ करना चाहता हूं तो मैं दोनों साइड कॉट अप्लाई करूंगा। तो अगर 10 अप्लाई कर रहा हूं मैं यहां पर दोनों साइड पे, 10a प्लस b इज नथिंग बट 10 π/2 माइनस c। नाउ 10a प्लस b का फॉर्मूला हो जाएगा 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, एंड 10 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉट थीटा, कॉट सी लिखेंगे। अगर मैं अभी तक ये फॉर्मूला बताया नहीं हूँ, नेक्स्ट सेक्शन पे नेक्स्ट क्लास आएंगे मैं इसके शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगा कि कैसे निकाला जाता है 10a प्लस b, 10 π/2 माइनस थीटा, 10 π/2 प्लस थीटा, 10 π माइनस थीटा, कॉट a प्लस पाई प्लस थीटा, सब चीज़ का शॉर्टकट फॉर्मूला रहेगा हमारे पास। फॉर द टाइमिंग इसको लिख सकते हैं कॉट सी। और इसके अगर फॉर्मूला को तुम प्रूव भी करना चाहते हो, ये कॉट सी कैसे हुआ, जस्ट यू कैन अप्लाई द 10a माइनस b फॉर्मूला, 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। उस जगह से ये प्रूव हो जाएगा, इसका वैल्यू निकलेगा कॉट सी, एंड द कॉट सी इज नथिंग बट आई कैन राइट इट 1/10c। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 10a इंटू 10c प्लस 10b इंटू 10c इज इक्वल टू 1 है इधर, तो ये हो गया 1 माइनस 10a इंटू 10b, एंड आई थिंक हमको आपका आंसर मिल चुका है। अगर ये चीज़ को मैं उधर उठा के ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, ये 10a इंटू 10b करेक्ट है, 10b इंटू 10c इसको सजा के लिख दिया मैंने, प्लस 10c इंटू 10a इज नथिंग बट आपका मिल गया 1। टू प्रूव दिस सेकेंड वन, जस्ट आई विल टेक कॉट ऑन द बोथ साइड। तो प्रूफ करते हैं, चलो कॉट का भी। सो जस्ट अप्लाई द कॉट फॉर्मूला ऑन द बोथ साइड, कॉट a प्लस b इज नथिंग बट कॉट π/2 माइनस c, एंड यू नो दैट कॉट a प्लस b का फॉर्मूला होता है कॉट a कॉट b माइनस 1 बाय कॉट b प्लस कॉट a, राइट। एंड ये चीज़ होगा 10c।
अगर फिर से तुमको अगर जानना है इसका आंसर 10c कैसा आया, जस्ट यू कैन राइट 10e माइनस बी, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करने से मिलेगा मुझे 10c, एंड द 10c इज नथिंग बट 1 बाय कॉट सी। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करा मैंने, तो ये क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होने से कॉट ए कॉट बी कॉट सी माइनस कॉट सी, राइट, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो कॉट बी प्लस कॉट ए। नाउ क्या हो गया नंबर, कॉट ए कॉट बी कॉट सी इज इक्वल टू कॉट ए, ये उधर जाने से प्लस हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी। सो द थिंग इज गॉन सो इजीली, प्लीज नोट इट डाउन। इसी के रिलेटेड और एक नंबर मैं तुमको देना चाहूंगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर a प्लस b a प्लस b प्लस c इज पाई, और आई कैन से दैट ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, मींस अ ट्राइंगल, देन प्रूव दैट, क्या होगा प्रूफ, उसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, दिस इज नथिंग बट 10a प्लस 10b प्लस 10c इज नथिंग बट यू हैव टू प्रूव दैट 10a इंटू 10b इंटू 10c। और एक चीज प्रूव करना पड़ेगा कॉट ए प्लस बी के लिए, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इज नथिंग बट 1। सिमिलरली यू कैन डू दिस वन, जैसे हमने प्रीवियसली करा, a प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस सी करा, यहाँ पर पाई माइनस सी करके तुम सॉल्व कर सकते हो। मैं इसी के रिगार्डिंग तुमको एक नंबर देना चाहूँगा। क्वेश्चन ये है, मतलब इसी के साथ रिलेटेड है, प्रूव दैट 1020 डिग्री प्लस 1072 डिग्री प्लस 1088 डिग्री इज नथिंग बट 1020 इंटू 1072 डिग्री इंटू 1088 डिग्री। तो तुमको इस नंबर के साथ कोरिलेट करने से पता भी चल गया, इट इज अ पर्टिकुलर केस बिकॉज 20 प्लस 72 प्लस 80 इज नथिंग बट 180 डिग्री। तो अब तुमको अपना आंसर मिल चुका है यहाँ से। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 72 प्लस 82 प्लस 88 को 180 डिग्री लिखेंगे और अकॉर्डिंगली जैसे हमने सॉल्व करा वैसे ही सॉल्व करेंगे। सो यू कैन थिंक, देखो जिस भी नंबर पे जो भी नंबर रहा, सबसे पहला यही काम रहेगा, हमको एंगल के बीच में कोऑर्डिनेशन लाना है। वो एंगल मिलके कुछ अच्छा एंगल दे रहे हैं, अच्छा एंगल मतलब पाई बाय 2, 45 या फिर 90 डिग्री या फिर 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री, जिसका वैल्यू मुझे पता है। सो सबसे मेरा काम पहला रहेगा, मुझे कोऑर्डिनेट करना है कि कौन सा एंगल कैसा है, किसके बीच में रिलेशन आ रहा है। जैसे कि हम लोग 56 एंड 11 वाला में देखें, तो 56 को अगर 11 से माइनस करो तो मुझे एक अच्छा एंगल मिल रहा है, अच्छा मतलब समझ आया, 45 डिग्री मिल गया, तो मैंने आगे बढ़ा उसके चलते। यहीं पर भी यही रहेगा, 20 प्लस 72 प्लस 88 180 डिग्री हुआ। अब आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट एक नंबर करवाना चाहूँगा मैं तुमको। कि क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में, हमेशा ये क्वेश्चन आता है एग्जाम पे, tan 3x प्लस tan 2x प्लस 10x इज नथिंग बट, सॉरी दिस इज माइनस इज इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x। जैसे कि मैंने तुमको अभी जस्ट बताया कि तुमको एंगल के बीच में कोऑर्डिनेशन करना है, तो यहाँ पर मेरे पास एंगल है x 2x एंड 3x। तो आप अगर ऐसा क्या कोऑर्डिनेशन बनाएंगे तो यहाँ पर एक अच्छे से नंबर हो पाएगा। सो हम जानते हैं कि 3x इज नथिंग बट 2x प्लस x। सो जस्ट आई विल राइट एज 3x इज नथिंग बट 2x प्लस x, और यू कैन राइट x प्लस 2x। नाउ अप्लाई 10 ऑन द बोथ साइड, तो 10 अप्लाई कर दिया मैंने, तो ये क्या होगा 10 ऑफ 2x प्लस x। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला वो 10a प्लस b फॉर्मूला, तो 2 10x प्लस 10 2x प्लस 10x बाय 1 minus 10 2x into 10 x. This is nothing but 10 3x. Now by cross multiply I can just get the answer. So 1 into 10 3x is 10 3x minus 10 2x into 10x into 10 3x multiply हो गया इधर, and this is nothing but 10 2x plus 10x. Now तुम लोग का आंसर दिख चुका है ऑलरेडी। ये दोनों को मैं इधर साइड लाऊंगा और उसको उधर साइड लाऊंगा, एंड आई विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो दिस इज नथिंग बट 10x 10 2x 10 3x। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। सिमिलरली एक चीज और प्रूव कर सकते हैं कॉट की टर्म पे, कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x
माइनस कॉट एक्स इंटू कॉट 3x इज इक्वल टू 1। अब मैं ये नंबर बताना नहीं चाहूँगा तुमको, फिर से वही कहानी रहेगा, 3x इक्वल टू 2x प्लस एक्स, अप्लाई कॉट ऑन द बोथ साइड टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे। ये सब चीज़ें रहा तुम्हारे कोऑर्डिनेशन के ऊपर कि एंगल के बीच में तुम कोऑर्डिनेट कैसे कर पा रहे हो। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम पे, इफ tan a plus b is your 7/23 and that given that tan a minus b is 5/3, then find the value of tan 2a। tan 2a का वैल्यू मुझे निकालना है। अब तक मैंने तुमको tan 2a का फॉर्मूला बताया भी नहीं है और बिना बताए ये नंबर हमसे सॉल्व हो पाएगा। तो मैंने जैसे तुमको बार बार बोला कि कोऑर्डिनेशन चाहिए। अब मुझे 2a कैसे मिलेगा, जस्ट लुक आउट दैट गिवन थिंग्स। गिवन पे मुझे दिया tan a प्लस b का वैल्यू एंड tan a माइनस b का वैल्यू। अच्छा, 2a कैसे आ सकता है? अगर मैं a प्लस b प्लस a माइनस b कर दूँ तो मुझे 2a मिल पाएगा कि नहीं? तो वही चीज़ रहा, तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कैसा रहा यहाँ पर। तो आई कैन राइट दिस इज tan a प्लस b प्लस a माइनस b लिख सकता हूँ कि नहीं? b भी कैंसिल होकर 2a मिल जाएगा। नाउ आई कैन जस्ट अप्लाई फॉर द tan a प्लस tan b, टेक इट इज a एंड टेक इट एज b। तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा tan a प्लस b प्लस tan a माइनस b बाय 1 माइनस tan a प्लस b इंटू tan a minus b. Correct? Now just put the value. This is 7/23 plus 5/3 by 1 minus 7/23 into 5/3. Now I can just solve this one to get the value. The main thing is that how can you coordinate the angles? हर एक एग्जाम पे, चाहे वो जेई लेवल के एग्जाम हो या फिर सिलेबस बेसिस पे क्वेश्चन रहे, तुमको क्वेश्चन पे हमेशा आंसर गिवन मिलेंगे। जस्ट तुम्हें देखना है कि ये एंगल कैसे रिलेटेड है, मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। डोंट थिंक, देखो कि हमेशा फॉर्मूला से आंसर नहीं निकलते, हमेशा टेक्निक के थ्रू ही आंसर निकलेंगे। सो अब मैं तुमको नेक्स्ट जो क्लास मैं बताने चाहूँगा वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज कॉल्ड द एलाइड एंगल। tan π/2 प्लस थीटा, tan π/2 माइनस थीटा, cosec π माइनस थीटा, cosec 2π प्लस थीटा। ऑल टुगेदर मैं तुमको कुछ फॉर्मूलाज बताने चाहूँगा एंड दैट फॉर्मूला विल बी द शॉर्टकट फॉर्मूला। दो फॉर्मूला, टोटल 2 फॉर्मूला से सारे एंगल के बारे में तुमको पता चल जाएगा। और यू डोंट, मतलब तुमको याद रखना नहीं पड़ेगा कुछ भी, मतलब एक भी फॉर्मूला याद रखना नहीं पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करिए वो फॉर्मूला को जानने के लिए एंड कीप प्रैक्टिसिंग ऑफ tan a plus b, tan a minus b फॉर्मूला। Thank you for watching the video. Hope you are liking the videos. If you like the videos, please comment on the box and like the button. Okay, thank you for watching.